السلام علیکم، علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ میں ہوں ماجد علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے قطر سے LNG درآمد۔ پاکستان $5.5 ارب کے بحران میں پھنس گیا۔ قطر سے کیے گئے 2 معاہدوں کے نتیجے میں 177 LNG کارگو سرپلس ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سہیل اقبال بھٹی سے۔ بھٹی صاحب کیا ڈیٹیلز ہیں بتائیے۔ جی بالکل، قطر سے LNG درآمد کے معاملے میں پاکستان کو $5.5 ارب کے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے وزیر پیٹرولیم اور متعلقہ حکام کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ فوری طور پر قطر جائیں اور قطر سے بات چیت کریں کہ قطر کے آئندہ 5 سالوں میں 170 LNG کے کارگو جن کی مالیت $5.5 ارب ہے، پاکستان ان کو نہیں خرید سکتا۔ پاکستان میں گیس کی استعمال بہت کم ہو چکا ہے، لہٰذا قطر ان کارگوز کو ڈیفر کرے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ سے اس معاملے کی ڈائریکشن ملنے کے بعد وزیر پیٹرولیم کے ہمراہ اور متعلقہ کمپنیز کے MDs کے ہمراہ 25 اگست کو قطر جانے کے ان کا جانے کا امکان ہے، جہاں پر قطری حکام کے ساتھ جا کر جو آئندہ 15 سالوں کے لیے 2 معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں پر نظر ثانی کی بات چیت کی جائے گی، تاکہ یہ جو سالانہ 108 کارگو خریدنے کا پاکستان پابند ہے، اس پابندی سے نکل سکے اور آئندہ 5 سالوں میں 170 LNG کے کارگو جو سرپلس ہیں ان کا 2 حل تجویز کیے گئے ہیں۔ یا تو قطر یہ کارگوز عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دے، جس میں نقصان اور نفع قطر کے ذمہ ہوگا، پاکستان اس میں شریک نہیں ہوگا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ 5 سال کے لیے یہ کارگوز ڈیفر کیے جائیں اور 2031 کے بعد پاکستان کے اندر جب گیس کی کھپت بڑھے گی تو دوبارہ پاکستان یہ کارگوز لے لے گا۔ اب یہ قطری حکام کے ساتھ میٹنگ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، جس کا آئندہ ہفتہ پتہ چلے گا کہ قطر پاکستان کی ان سفارشات کے اوپر، ان گزارشات کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے۔ جی، معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم قطر کا دورہ بھی کریں گے۔ سہیل اقبال بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل تفتان نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ انسانی اسمگلر محمد عدنان اسلم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم عراق سے آپریٹ ہونے والے انسانی ٹریفکنگ کے منظم گینگ کا حصہ ہے۔ ملزم پاکستانی شہریوں کو ایران کے غیر قانونی راستوں سے عراق اسمگل کرتا تھا۔ ملزمان شہریوں کو عراق میں موجود سیف ہاؤسز میں محصور رکھتے تھے۔ دوران تفتیش ملزم کے موبائل سے انسانی اسمگلنگ کے شواہد برآمد کر لیے گئے۔ کوہاٹ کے علاقے کالو بانڈا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ لاش اور زخمی کو KDA اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی شخص سابقہ پولیس اہلکار ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ گھوٹکی میں M5 موٹر وے پر تیز رفتار گاڑی ٹائر پھٹنے کے باعث الٹ گئی۔ حادثے میں بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تعلقہ اسپتال گھوٹکی منتقل کر دیا گیا۔ سرائے مغل میں حلہ نہر کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں بزرگ شہری جاں بحق جبکہ 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوکی منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ چشتیاں میں دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث دلہ آکو کا مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں مختلف بستیاں زیر آب آ گئیں۔ بند ٹوٹنے کے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ سیلابی ریلے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تل اور کپاس کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ مقامی افراد نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق اب تک 1500 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ چونیا میں چھانگا مانگا وائلڈ لائف ریجن ٹیم کی کارروائی، غیر قانونی طور پر رکھے گئے نایاب اور قیمتی پرندے بازیاب کروا لیے گئے۔ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف کے مطابق کارروائی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر وائلڈ لائف مریم اورنگزیب کی ہدایات پر کی گئیں۔ بازیاب کروائے جانے والے پرندوں میں راں طوطے، لالیاں اور دیگر قیمتی نسلوں کے پرندے شامل ہیں۔ نوشہرہ کے علاقے نظام پور ماما خیل میں نامعلوم ملزمان گھر کا صفایا کر گئے۔ مزاحمت پر میاں بیوی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ چور گھر سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔
कसूर में बर्र सग़ीर के अजीम सूफ़ी शायर और बुज़ुर्ग हज़रत बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर और बैरून मुल्क से हज़ारों ज़ायरीन दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं। कुरान ख़वानी, फ़ातिहा और दुआओं का सिलसिला जारी है। उर्स के मौके पर ढोल की थाप पर भंगड़े, चादरें चढ़ाने की रसूमात और मलंगों की धमालों ने माहौल को रूहानी रंग में रंग दिया। खबर आपको देंगे, कराची में साइट लिमिटेड की नाअहली सामने आ गई। साइट सनती एरिया में नालों पर ताहाल फैक्ट्रियां कायम हैं। तेज़ बारिश के दौरान गंदे नाले का पानी साइट लिमिटेड स्टाफ कॉलोनी के घर में दाखिल हो गया है। अपडेट करेंगे आपको, साइट लिमिटेड की नाअहली सामने आ गई है। साइट सनती एरिया में नालों पर ताहाल फैक्ट्रियां कायम हैं। तेज़ बारिश के दौरान गंदे नाले का पानी साइट लिमिटेड स्टाफ कॉलोनी के घरों में दाखिल हो गया। क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अख्तर शाहीन रिंद से। अख्तर शाहीन, बताइए। जी, ये साइट लिमिटेड का इलाका जो कराची का साइट मेन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर नालों के ऊपर सनतकारों ने अपनी फैक्ट्रियाँ कायम कर रखी हैं। ये गैर कानूनी तजावज़ात हैं जिसे हटाने के लिए 12 हिदायत की जाती रही है, लेकिन साइट लिमिटेड का जो इदारा है वो इस काबिल नहीं है कि वो तजावज़ात का खात्मा कर सके और बार बार सनतकारों के दबाव में आ जाता है। अभी हालिया बारिशों के दौरान जो गंदा नाला था वो उबल पड़ा और उसका गंदा नाले का जो पानी है वो साइट लिमिटेड की स्टाफ कॉलोनी के घरों में दाखिल हो गया। जामे बनूरिया के पास ये नाला वहाँ पर मौजूद है, जिससे मुलाजमीन का लाखों का नुकसान हुआ। और उस नाले के अंदर पानी माफिया की कुछ लाइनें भी वहाँ मौजूद थी जो रुकावट का बायस बनी हुई थी। अब लोगों के एहतजाज के बाद फिर साइट इंतजामिया ने वहाँ उसको नाले के ऊपर जो छत थी, पुख्ता छत थी, वो वहाँ पे तोड़ी है और उसके बाद जाके वहाँ से कुछ बहाव जो है वो बनने में कामयाब हुआ। इस हवाले से हमने साबिक सदर साइट एसोसिएशन अब्दुल हादी साहब से रब्ता किया। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि उनकी फैक्ट्री भी इस नाले पर कायम है, ताहम उन्होंने इस बात की तरदीद की और उनका कहना था कि मेरी फैक्ट्री जो है वो 1988 से वहाँ कायम है और कानूनी है। जबकि जो मौजूदा सदर हैं साइट एसोसिएशन के अहमद अजीम अलवी, उनसे हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम तजावज़ात की हिमायत नहीं करते हैं और साइट लिमिटेड अपना रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करे। इस हवाले से हमने साइट लिमिटेड के एमडी से रब्ता किया, उनके ऑफिस में हम वहाँ गए कि उनका मौक़िफ़ जान सके, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। फिर हमने जब तर्जुमान से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि कुछ बाज़ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो अदालती हुक्म इम्तना की वजह से वहाँ पर कायम है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अख्तर शाहीन रिंद। कराची में लियारी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एन.डी. खान ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। कराची में बारिश के बाद लियारी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एन.डी. खान मुतहरिक नजर आए। उन्होंने म्यूनिसिपल अफसरान के हमरा लियारी टाउन की मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया। इस दौरे में उनके हमरा यूसीज चेयरमैन इंजीनियर रशीद हारून, चेयरमैन फ़हीम बलोच और चेयरमैन सिद्दीक बलोच भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एन.डी. खान ने लियारी मिर्ज़ा आदम खान रोड, ली मार्केट और चाकीवाड़ा समेत अहम शाहराहों पर बरसाती पानी की निकासी के कामों का मुआयना किया और सफाई सुथराई वाले अमले को ज़रूरी हिदायत जारी की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर एंटी एनक्रोचमेंट के KMC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन डिवीज़न में तजावुज़ात के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मेन यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफ़र और सीनियर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट KMC अम्मार खान की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैफिक जैम की शिकायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन डिवीज़न में यूनिवर्सिटी गेट मौसमियात तक कार्रवाई की गई। रोड और फुटपाथ पर रखा सामान उठाकर स्टोर में जमा किया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर आमिर शाह और एडिशनल डायरेक्टर गुल फराज ने स्टाफ के हमरा की। इस मौके पर इलाका पुलिस भी मौजूद थी। कराची में बारिशों के दौरान टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शाह फैसल की जानिब से निकासी आपके क्या इंतजामात किए गए हैं, तफसीलात जानते हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज में तुग़यानी आ गई। दरिया सतलुज में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो चुकी है, जिससे सरहदी इलाके मुतासिर हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है, जानते हैं कसूर से नुमाइंदा GTV न्यूज़ वसीम अख्तर से। वसीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइए।
जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज की बात की जाए तो दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अगर इस टाइम दरिया सतलुज की बात की जाए तो हेड गंडा सिंह के मुकाम से 1,12,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। 21 फुट के करीब इसकी सतह पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे? भाई जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इधर हम ना अपने इंतज़ामिया पे कुछ नहीं हमारा कार्य, ये हम अपनी मदद आप सारा काम कर रहे हैं, रस्तों का भी और मवेशियों का भी। ज़्यादा इशू यही है कि हमारे पास अब चारा ख़त्म हो गया है। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी है, उनका कहना है कि जो अल्लाह की तरफ से एक आफत आई है, हम उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि मुआल मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाए, उनके बच्चों के लिए खाने पीने का और अद्वियात का इंतज़ाम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। वसीम, शुक्रिया आपका। कोट अद्दू, दरिया सिंध, हेड तौंसा बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नशीबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नियाज़ अहमद से। नियाज़, बताइए। जी बिल्कुल, KPK में होने वाली मानसून बारिशों और सैलाबी रेले के बाद जो है कोट अद्दू, दरिया सिंध, हेड तौंसा बिराज में जो है पानी की सतह में जो है मुसलसल जो है इजाफा हो गया है। इस टाइम हेड तौंसा बिराज पर पानी का जो है उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। तो मेरे साथ एक सलाह मुतासरीन मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनके कितने नुकसानात हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, पिछले कुछ महीने पहले इधर फ्लड आया था ना, तो सारा इधर जो नीचे वाले इलाके हैं वो सारे डूब गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो फिर हम यहाँ से चले गए थे। फिर उसके बाद जब हम दोबारा आए हैं, फिर KPK में बारिशें हुई हैं मानसून की, और सारा पानी उतार चढ़ाव, बस बहुत हालत ख़राब है। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे फ्लड कैंप लगाए जाएँ ताकि अवाम अपना गुजर बसर कर सकें। जी बिल्कुल, ये सलाह मुतासरीन की आपने बात सुनी कि इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि फ़्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो लगाए जाएँ। जो नशेबी इलाके के जो मुतासरीन हैं, अगर मज़ीद पानी की सतह में इजाफा हुआ तो उनके लिए जो है मुश्किलात जो हैं बढ़ सकती हैं। जी, डेरा गाजी खान, दरिया सिंध में सैलाब से संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। दर्जनों मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैकड़ों घर मुनहदिम और हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब है। ना इमदादी कैंप कायम किए गए और ना ही कोई सहूलियात फराहम की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हसनैन अहमद। डेरा गाजी खान के इलाके शाह सदरुद्दीन के मशरिक में दरिया सिंध की तुग़यानी ने क़यामत ढा दी। सैलाबी पानी ने बेड शाह सदरुद्दीन, भट्टी, मेतला, तरंड, पक्की, सुखरा, आराइन, रख छावनी, दरहमा, समीना सादात, मेतर बख्श, हाजी गाजी, नूरिया, कोरिया समेत दर्जनों मुआज़ात को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, सैकड़ों मकानात ज़मीबोस हो चुके हैं और मुतादिद घरों में अब भी पानी मौजूद है। मुकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर है। ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदे ताहाल मंजर आम से गायब हैं। वज़ीर आला साहब दूजी दफ़ा पानी आंदा पर कोई इंतज़ामिया नहीं बयानदा। निके निके बाल लुटते पन, भूखे मर गए हैं। इंतज़ामिया को पट्ठो कोई सारा इंतज़ाम करे, ना कोई इंतज़ामिया आंदी है, ना कोई गाल है, ना कोई बात है। बस हूँ सारा हूँ अल्लाह ही पानी दूजी तीजी दफा सारे मकान लुट गए। असा अपनी जान बचा के बाहरों निकले रोड पे। मकीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। घरों और खेतों में खड़ा पानी उनकी जिंदगी और रोजगार दोनों को मुतासिर कर रहा है। मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन का आगाज किया जाए ताकि खुराक, अद्वियात और आर्जी रिहाइश गाहें मुहैया की जा सकें। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। आरिफ वाला, दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी के तेज़ बहाव के बायस ज़मींदारा बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब के बायस मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इम्तियाज़ अहमद चौधरी से। इम्तियाज़, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइए। आज ही बिल्कुल दरिया सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत मज़ीद बिगड़ चुकी है, क्योंकि पानी के बहाव और सतह में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और पानी के बहाव के इजाफे की ही वजह से मकामी लोगों की जानिब से बनाए गए आर्जी ज़मींदारा बंद टूट रहे हैं और सैलाबी रेला मज़ीद बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह कर रहा है। दरिया के करीब छोटी बस्तियाँ
20 सैलाबी पानी की जद में आ चुकी हैं और यहाँ पर मकामी लोगों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए अमदादी कार्रवाइयों की तो रेस्क्यू 11 मई की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दराई इलाके के मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से भी दरिया के करीब जो लोग आबाद हैं इनको यही हिदायत की जा रही है कि अपने माल मवेशियों समेत यहाँ से निकलकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।